Hello students, welcome back to my next video lecture. In this video lecture, we are going to discuss solubility of gases in liquid. What are the factors which affect the solubility of gas in liquid. Okay, जब हम किसी लिक्विड में किसी गैस को डिज़ोल्व करवाते हैं, ठीक है, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ द solubility of gas is going to affect. First of all, what is solubility? Solubility of any gas in a particular liquid is the volume of the gas in centimeter cube or ml that can dissolve in a unit volume of the liquid to form the saturated solution at that particular temperature and under the given pressure. Okay, क्योंकि gases के case में pressure can also affect the solubility, so that's why you have to mention condition of pressure and temperature, and at the mentioned condition of pressure and temperature the volume of gas in ml which is going to dissolve in the unit volume of the liquid. Unit volume means 1 centimeter cube of the liquid to form saturated solution, that is called as the solubility of that particular gas in that particular liquid. Okay, now the solubility of gas is expressed in term of molarity. ठीक है, जो आपके पास लिक्विड में गैस डिज़ोल्व हो रही है, ठीक है, उसमें जो गैस डिज़ोल्व हो गई है उसकी कंसनट्रेशन और यू कैन से सॉलिबिलिटी यू कैन एक्सप्रेस इन मोलैरिटी और इन मोल फ्रैक्शन. ओके, क्योंकि वो सोल्यूशन बन रहा है गैस का इन लिक्विड. ओके, सो उस सोल्यूशन की कंसनट्रेशन और यू कैन से सॉलिबिलिटी आप मोलैरिटी एज वेल एज मोल फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट कर सकते हो. ओके, सो नाउ नेक्स्ट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग solubility of gas in liquid. What are the factors which affect solubility of gas in the liquid? First factor is nature of gas and the solvent. As we studied in case of solubility of solid in liquid in my previous video, okay, we studied that polar solids dissolves more in polar liquid, and similarly non-polar solids dissolve more in non-polar liquids. So similarly, chemical similarity leads to the greater solubility. For example, HCl, NH3. These gases are more soluble in water. Why so? Because HCl and NH3 is a polar molecule and H2O is a polar solvent. Okay, and similarly oxygen, nitrogen, carbon dioxide are more soluble in ethyl alcohol, which is non-polar in nature. Okay, or you can say majorly non-polar in nature, and these gases are also non-polar in nature. So like dissolve like principle also applies here. Okay, so nature of gas and solvent affect solubility of gas in the liquid. And the second factor is temperature. Okay, as we know that gas when dissolved in solvent there is formation of solution and heat is liberated out. It is a type of condensation reaction, okay, in which the heat is liberated out. Okay, clear? So it means solubility of gas in a liquid decreases with increase in temperature, because on increasing temperature you are going to supply heat. Okay, and this heat supplied leads to the shifting of the equilibrium to the backward side. It means solubility is going to get decreased. Okay, so it means the effect of temperature is on increasing temperature the solubility of gas in liquid decreases. Okay, but there are some exceptions like gases like such as hydrogen and inert gas. Their solubility increases with increase in the temperature in case of their solubility in non-aqueous solvent such as hydrocarbons and alcohols and acetones. These are some exceptions which are always there in case of chemistry, but majority of gases solubility decrease with increase in temperature. Okay, and next quantitatively relation दिया गया है solubility का with temperature. C2 by C1 log C2 by C1, ये कौन सा log है? log base 10. There are two types of log base 10, log base E. Okay, so log base 10 C2 by C1 equal to 1.203 delta H by R delta bracket 1 by T1 minus 1 by T2 bracket close. Delta H is representing heat of solution of 1 mole of gas at temperature T. Okay, means जब आपने टेम्परेचर T रखा उस टाइम जब 1 मोल
ऑफ गैस आपने डिजॉल्व करवाई टू फॉर्म द सॉल्यूशन, at that time the heat liberated is called as the delta H, which is called as the heat of solution. Okay, clear? And C2 is concentration of gas at temperature T2, and C1 is concentration of gas at temperature T1. Okay, so this is how the solution concentration solubility को represent कर रहा है. This is how the solubility changes with the temperature. Okay, clear? If you know C1, T1 and T2, you can know C2. Okay, and last factor which affects solubility of gas in liquid, that is pressure. As we know that pressure is also an important factor which affects solubility of gases in case of liquid. Okay, so it is studied under the Henry's law because Henry took a detailed study of this. Okay, so first of all, definition: the mass of gas dissolved in a given liquid at a constant temperature is directly proportional to the pressure of gas present in equilibrium above the liquid. It means if there is a this liquid, okay, and this gas is going to get dissolved in this liquid. So if you keep on increasing pressure of this gas above the liquid, more gas is going to get dissolved in this liquid. Okay, it means mass of gas dissolved in a liquid is directly proportional to pressure of gas above that liquid. Okay, clear? And when directly proportionality converted to equal, then a constant appears k, and k is called as the Henry's constant. And here the value, the unit of k will be, what will be the unit of k? k के यूनिट क्या बनेंगे? मास बाय प्रेशर, मास के यूनिट ग्राम और केजी, एंड प्रेशर के यूनिट एटमॉस्फेयर, or you can say atmosphere inverse gram. This is the units of Henry's constant in case of this equation. There is another definition too. Okay, this is same. Okay, मतलब बेसिक आइडिया यही रहेगा कि आपके पास ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑफ गैस अबव द लिक्विड, दिस मोर गैस इज गोइंग टू गेट डिजॉल्व्ड. ओके, बट डेफिनेशंस अलग अलग बना दी गई हैं. लाइक solubility of a gas, in previous definition they are talking about mass of the gas. Now we are going to discuss about solubility of a gas in a liquid at a particular temperature is directly proportional to the pressure of the gas in equilibrium with the liquid at that temperature. Okay, it means यहाँ पे बोल दिया गया है कि solubility जो होगी that is directly proportional to pressure of gas above the liquid. Okay, it means solubility is directly proportional to pressure of gas. Okay, here, and in the previous definition they are talking about mass of gas dissolved in the liquid is that directly proportional to the pressure. और जितना ज़्यादा मास डिजॉल्व होगा गैस का इन द लिक्विड, उतनी ही ज़्यादा सॉलिबिलिटी. ओके, और सॉलिबिलिटी को आप मोलैरिटी की टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो और मोल फ्रैक्शन की टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो. सो फ्रॉम दिस डेफिनेशन द इक्वेशन अपीयर्स दैट मोलैरिटी of the gas dissolved is directly proportional to pressure of gas above the liquid. और जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटेगा तो k लगेगा, दैट इज हेनरीज कांस्टेंट. सो अब की बार जो हेनरी कांस्टेंट आया इस इक्वेशन के लिए, उसके लिए के वैल्यू क्या होगी? व्हाट इज द यूनिट्स फॉर दैट हेनरी कांस्टेंट? k इक्वल टू एटमोसफेयर इनवर्स पर मोलर इनवर्स. ओके, क्लियर? कहाँ से बना? k के यूनिट्स क्या आएंगे? मोलैरिटी डिवाइडेड बाय pa. व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोलैरिटी? मोलर. ओके, व्हाट इज यूनिट ऑफ प्रेशर? एटमोसफेयर. ओके, तो इट कम्स मोलर एटमोसफेयर इनवर्स. ओके, मोलर एटमोसफेयर इनवर्स. यहाँ पे ठीक कर लो, यहाँ पे इनवर्स नहीं आएगा. ओके, वेट, यू हैव टू करेक्ट इट हेयर, दैट इज यहाँ पे आपका मोलर इनवर्स नहीं आएगा. ओके, सो दिस इज इट. Now if you express solubility of the gas in terms of mole fraction, then you can say that mole fraction of a gas, okay, let us say we are talking about the gas A. Mole fraction of the gas A is directly proportional to pressure of gas. Okay, and when you remove this directly proportional then there is a constant pair called as the Henry constant. And in case of this, Henry constant has units atmosphere inverse. इसमें ये Henry constant के यूनिट क्या आएंगे? एटमोसफेयर इनवर्स. ओके, क्लियर? और एक और वाइस वर्सा डेफिनेशन भी है. ओके, ये उल्टा अब बोलने वाले हैं कि मान लो आपके पास सोल्यूशन में ऑलरेडी गैस डिजॉल्व थी. ओके, क्लियर? और आपने उस सोल्यूशन को एक नए कंटेनर में ट्रांसफ़र किया, ऊपर से बंद कर दिया. इस सोल्यूशन से दोबारा गैस ऊपर आएगी.
अनडिजॉल्व फॉर्म में, ओके। और उसके कारण जो प्रेशर जनरेट होगा, प्रेशर ऑफ गैस, उसकी बात करने वाले हैं, ओके। द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इन वेपर फेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन। जितना ज़्यादा सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस होगा, उतना ही ज़्यादा जो आपके पास गैस के मॉलिक्यूल आएंगे गैसेस फॉर्म में अबव द लिक्विड, उतना ही ज़्यादा उनका प्रेशर बढ़ता जाएगा। इट मीन्स प्रेशर ऑफ gas A above the liquid is equal to equal to Henry constant into mole fraction of that particular gas. And here K dash is a new Henry constant and its unit will be units of pressure, क्योंकि मोल फ्रैक्शन को तो यूनिट होते नहीं है, तो its unit will be atmosphere. Okay, clear? So these are the different types of Henry equation. Which equation you have to apply? How you come to know? You have to look for the units given of the Henry constant. न्यूमेरिकल के टाइम आपको हेनरी कांस्टेंट के कौन से यूनिट दिए हैं, उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड करोगे कि कौन सा फार्मूला लगेगा। और बेसिक आपके पास जो बात हो रही है, बेसिक बात, सभी इक्वेशन कैसी दिख रही हैं आपको, कि जो सॉलिबिलिटी ऑफ गैस है या अमाउंट ऑफ गैस है, ऐसे बोलते हैं, अमाउंट ऑफ गैस डिजॉल्व जो है वो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ गैस अबव द लिक्विड। सारा बेसिक जो आपके पास इक्वेशन है वो इसी बेसिक फार्मूले के इर्द गिर्द घूम रही हैं, चाहे वो ये इक्वेशन हो, चाहे वो ये इक्वेशन हो, चाहे वो आपके पास ये इक्वेशन हो, और चाहे ये वाइस वर्सा वाली इक्वेशन हो। ओके, क्लियर? और यहाँ पे ये ग्राफ बताए गए हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हम इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करें तो दिस इज़ द सॉलिबिलिटी, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से अगर कंपेयर करें तो यहाँ पे c इक्वल टू 0 है। इट मीन्स ग्राफ विल स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन, ओके, and along x-axis you have to take pressure of gas A, and along y-axis you have to take solubility, okay, and that graph will be having straight line, okay, because this and this is matching, and that straight line will have slope m किसके इक्वल आएगी, k के इक्वल, slope equal to k means that is Henry's constant, okay। अगर आपको solubility versus पीए का ग्राफ दिया हो, प्रेशर ऑफ गैस का ग्राफ दिया हो स्ट्रेट लाइन, तो उस स्ट्रेट लाइन की स्लोप फाइंड आउट करो तो आपके पास हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू आ जाती है फॉर दैट पर्टिकुलर सिस्टम। सिमिलरली फॉर दिस इक्वेशन, अगर इसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करोगे तो इसमें अब y एक्सिस के अलॉन्ग क्या होगा, प्रेशर ऑफ द गैस अबव लिक्विड, एंड x एक्सिस के अलॉन्ग क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, ओके। और आपका जो स्लोप आएगी वो किसके इक्वल आएगी, k डबल डैश, दैट इज हेनरीज कांस्टेंट, ओके, clear? New Henry constant for this equation, okay। This is all about Henry's law, and there are some certain limitations of Henry law. First of all, only in that case in which the gas is idle, the Henry law follows. It means, and we know that there is no gas which is idle, but all the real gases behave like idle at temperature high and pressure low. It means whenever you study the Henry law, you have to take gas at high temperature and low pressure, then only the Henry law will follow, okay। And the second, gas should do not undergo compound formation with solvent, okay। जो गैस है वो सॉल्वेंट के साथ, जिसमें जिस सॉल्वेंट में उसको डिजॉल्व करवा रहे हो, उस गैस को, पर्टिकुलर गैस को, वो उस सॉल्वेंट के साथ कंपाउंड फॉर्मेशन ना कर ले, या तो किसी तरह की एसोसिएशन या डिसोसिएशन में ना चली जाए, एज इट इज़ ही रहे। मीन्स जब कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में डिजॉल्व करो तो कार्बन डाइऑक्साइड एज इट इज़ ही रहे, बट डिजॉल्व स्टेट में रहे इन वाटर, ओके। वो कुछ नया कंपाउंड फॉर्मेशन ना करवा ले, ना ही कोई एसोसिएशन या डिसोसिएशन चली जाए, उस टाइम नहीं तो हेनरी लॉ ओबे नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, जो आपके पास अमोनिया है, अमोनिया वाटर में जब आप अमोनियम वाटर सिस्टम को स्टडी करते हो हेनरी लॉ में, तो अमोनियम वाटर के साथ मिलकर अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है, कंपाउंड फॉर्मेशन इज देयर, तो आपका जो डाटा होगा दैट इज़ नॉट गोइंग टू सेटिस्फाई हेनरी लॉ। इसके केस में मोलैरिटी जो है ज़रूरी नहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ गैस ही हो, ओके, क्लियर? और या ऐसा बोल लो कि सॉलिबिलिटी वर्सेस प्रेशर का ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही आए, दिस इज़ नॉट नेसेसरी, हो सकता है ये कर्व आ जाए ऐसी या ऐसी, ओके, क्लियर? स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा। स्ट्रेट लाइन तभी आएगा जब आपके पास गैस जो जिसको स्टडी कर रहे हो वो आइडल हो, और दूसरा वो गैस सॉल्वेंट के साथ कोई कंपाउंड फॉर्मेशन या एनी टाइप ऑफ एसोसिएशन या डिसोसिएशन ना करवा लो,
only that time Henry law will follow. Okay. Now next is application of Henry law. Henry law की applications, first of all प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड बेवरेजेस मतलब जैसे आपने कोक तो सभी पी लेते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जो शुगर सिरप है उस शुगर सिरप में कार्बन डाइऑक्साइड अंडर हाई प्रेशर उसके ऊपर अप्लाई करके उस कोक की बोतल में बंद की होती है। तभी जब हम उसको खोलते हैं तो जब आप उस कोक की बोतल को खोलते हो, ऑन ओपनिंग दैट कोक बॉटल क्या होता है, प्रेशर रिड्यूस होता है। प्रेशर रिड्यूस होने से क्या होता है, लिक्विड के अंदर जो गैस घुली होती है उसकी सॉलिबिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि प्रेशर अगर बढ़ेगा तो सॉलिबिलिटी बढ़ती है, अगर घटेगा तो सॉलिबिलिटी घटती है। तो इसलिए उस लिक्विड से दोबारा गैस बाहर आना शुरू हो जाती है। ओके। तो प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड बेवरेजेस। सेकंड, इन डीप सी डाइविंग जिसको स्कूबा डाइविंग बोलते हैं। ओके। पहले क्या होता था, जो डाइवर था, डाइवर क्योंकि अगर डीप सी जाएगा, सी के अंदर जा रहा है, ठीक है, तो उसको वहाँ पे सांस भी तो लेनी है। तो सांस लेने के लिए ही कैरी सिलेंडर, बट उस सिलेंडर में शुरू में क्या होता था, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ही सिर्फ भरी जाती थी। जैसे एटमॉस्फेयर में अराउंड 21% ऑक्सीजन है और 79% नाइट्रोजन है। तो इस रेशो में उस सिलेंडर में उसको ऑक्सीजन और नाइट्रोजन भर के दे दी जाती थी व्हेन ही गो फॉर स्कूबा डाइविंग। ओके। बट जब वो अंडर वाटर होता था, और अंडर वाटर जब वो यहाँ पे इन साइड ऑफ डी वाटर, यहाँ पे मान लो आपके पास वो स्कूबा डाइवर है आपका। ओके। तो अंडर जब वाटर है तो उसके ऊपर वाटर का प्रेशर भी लग रहा है उसकी बॉडी पे, ठीक है। अंडर हाई प्रेशर उसकी बॉडी में क्या होता है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो है उसकी सॉलिबिलिटी बढ़ जाती है। ऑक्सीजन जो होती है वो तो मेटाबॉलिज्म में चली जाती है, मेटाबोलाइज हो जाती है, ठीक है। जैसे आपके पास रेस्पिरेशन के दौरान या फूड डाइजेशन के दौरान, ठीक है। बट जो नाइट्रोजन है उसकी यूटिलाइजेशन नहीं है, बिकॉज नाइट्रोजन इज इनर्ट गैस। और उस हाई प्रेशर पे, जिस हाई प्रेशर पे वो स्कूबा डाइवर है, वो जो नाइट्रोजन है उसकी सॉलिबिलिटी ब्लड में बढ़ जाती है। तो नाइट्रोजन जो है वो ग्रेटर एक्सटेंट में घुल जाती है उसके ब्लड में। बट जो जब वो अल्टीमेटली फ्रॉम अंडर दी सी ही कम्स ऑन दी सरफेस, जब वो सरफेस पे आता है, ठीक है, उस टाइम क्या होता है, उसकी बॉडी के ऊपर जो प्रेशर लगा था वो रिड्यूस हो जाता है। वो एटमोस्फेरिक प्रेशर में आ गया ना, ठीक है। अंडर वाटर उसके ऊपर एटमोस्फेयर का प्रेशर भी लग रहा है, ठीक है, और वाटर का प्रेशर भी लग रहा है, दो तरह के प्रेशर लग रहे हैं। बट जब वो एटमोस्फेरिक में आया तो उस टाइम वाटर का प्रेशर तो हट गया, प्रेशर रिड्यूस हो गया उसकी बॉडी से। तो मतलब जो नाइट्रोजन उसकी ब्लड में घुल गई है, जिसकी सॉलिबिलिटी बढ़ चुकी थी, क्यों बढ़ चुकी थी, क्योंकि वो हाई प्रेशर पे नाइट्रोजन की सॉलिबिलिटी बढ़नी थी। तो ज़्यादा नाइट्रोजन जितनी नहीं भी घुलनी चाहिए थी उसकी ब्लड में, उससे वो घुल गई ग्रेटर एक्सटेंट में, ठीक है। और जब वो अल्टीमेटली एटमोस्फेरिक प्रेशर पे आता है तो होता क्या है, उसकी जो ब्लड वेन्स हैं उसमें क्या होता है, अल्टीमेटली नाइट्रोजन की जो सॉलिबिलिटी जब घट जाती है तो नाइट्रोजन जो है वो गैसेस फॉर्म में आना शुरू कर देती है उसकी वेन्स के अंदर, जिससे उसकी वेन्स में क्रम्स आना शुरू हो जाते हैं, जिसको बेंड्स बोलते हैं, ठीक है। क्लियर। एंड दीज बबल इफेक्ट, जो ये बबल्स बनते हैं उसकी नर्व्स के अंदर, वो उसके नर्व इम्पल्सेस को अफेक्ट करती हैं। ओके। और उसको एक डिजीज़ सी हो जाती है उस टाइम टेम्परेली, दैट इज़ कॉल्ड एज दी बैंड्स, और यू कैन से डिकम्प्रेशन सिकनेस। ओके। क्लियर। तो उसको मतलब बहुत ज़्यादा एक तरह से दर्द महसूस होता था उस टाइम। क्लियर। सो इट मीन्स, बट अब क्या हो गया, अब वो जो सिलेंडर स्कूबा डाइविंग के लिए यूज़ होते हैं उन सिलेंडर्स में 17.7% हीलियम भी भरी जाती है, सो दैट उसकी बॉडी में नाइट्रोजन की अमाउंट को जो जो सॉलेबल हो जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा वो घटाया जा सके, ठीक है। क्लियर। उससे क्या होगा, उसको जो बैंड्स या कह सकते हो डिकम्प्रेशन सिकनेस है वो कम आएगी, आएगी तो सही, क्योंकि अंडर हाई प्रेशर से जब वो होके आता है, ठीक है, डीप सी से जब वो बाहर आएगा, ऑब्वियस है उसकी बॉडी जो है हाई प्रेशर से जब लो प्रेशर में आएगी तो उसके अंदर जो गैसेस घुलेंगी वो एकदम से पहले लिक्विड में चली जाएंगी और एकदम से वो गैसेस फॉर्म में जब वापस बाहर आएंगी तो ऑब्वियस थोड़ा सा तो उसको फ़र्क पड़ेगा, बट पहले से के कंपैरिजन में ये जो बैंड्स हैं या कह सकते हो डिकम्प्रेशन सिकनेस है ये बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। ओके। एंड द थर्ड एप्लीकेशन इज़ इन लंग्स। लंग्स में जब हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, ठीक है, तो लंग्स में ऑक्सीजन का प्रेशर बढ़ जाता है। ओके। क्लियर। और उस ग्रेटर प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की वजह से क्या होता है, जो आपके पास
ब्लड है, ब्लड में वो ऑक्सीजन ग्रेटर एक्सटेंट में घुलती है और वो डिफरेंट पार्ट में ट्रांसपोर्ट हो जाती है, ओके, इन द फंक्शन ऑफ लंग्स, ओके। एंड नेक्स्ट इज फॉर क्लाइंबर्स और यू कैन से पीपल लिविंग इन दी हाई एल्टीट्यूड्स, तो उनको एक बीमारी होती है एनॉक्सिया। एनॉक्सिया क्या होता है, उनके ब्लड में, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड्स पे, जैसे माउंटेन्स के ऊपर हाई एल्टीट्यूड के यहाँ पे जो ऑक्सीजन है सी लेवल पे, और माउंटेन्स के ऊपर ऑक्सीजन का लेवल कम होता है, ठीक है, लो लेवल, ओके। तो अगर यहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल ही लो है तो इट मीन्स उनके, जब वो इनहेल करेंगे एयर को तो उसमें ऑक्सीजन का लेवल लो होगा, तो उनको उनको उनके ब्लड में भी ऑक्सीजन लो लेवल, लो कंसनट्रेशन में होगी, तो उनको एनॉक्सिया होता है, विच इज़ ड्यू टू द लो कंसनट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड एंड टिश्यूज़। यहाँ पे स्पेलिंग ठीक कर लो, टिश्यूज़, वेट, टिश्यूज़, ओके, क्लियर। So anoxia is due to the low concentration of oxygen in blood and tissues of the people living at high altitudes and climbers को ये प्रॉब्लम आती है, ठीक है। और एनॉक्सिया में क्या होता है, जेई वाले, जेई सॉरी जो नीट वाले हैं वो ध्यान से सुन लो। इन केस ऑफ एनॉक्सिया अ पर्सन फील वीक एंड अनएबल टू थिंक प्रॉपरली, उस टाइम वो वीक फील करता है, मतलब फटीग सी महसूस होती है, फटीग फील करेगा, ओके, ही फील्स फटीग एंड अनएबल टू थिंक प्रॉपरली, और वो प्रॉपरली थिंक नहीं कर पाएगा। सो दीज आर सम प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ what Henry's law, okay। So next, now we have to do some numericals based on the Henry's law. First of all, first numerical is calculate the solubility of hydrogen in water at 25 degrees Celsius if the partial pressure above the liquid of it is 1 bar, given that Henry constant for hydrogen is 71.81 kilobar. There is a liquid, okay, clear, and above that liquid you had taken hydrogen gas, okay, clear, and what at what pressure, 1 bar pressure. The hydrogen gas taken above the liquid has pressure 1 bar. Then how much hydrogen gas is going to get dissolved in this liquid, you have to find its solubility, okay। We know that pressure of gas dissolved is equal to solubility into kh। अब हमें कैसे पता लगा, ये वाली हेनरी इक्वेशन लगानी है, क्योंकि हेनरी कांस्टेंट कौन सा दिया हुआ है, इसके जो यूनिट्स हैं वो कौन से हैं, प्रेशर वाले, प्रेशर वाले, ओके। प्रेशर वाले यूनिट्स किस इक्वेशन में आते हैं इसमें, क्योंकि के एच के खुद के कोई यूनिट होते नहीं है, सॉरी, सॉलिबिलिटी के खुद के मोल फ्रैक्शन के टर्म, जब मोल फ्रैक्शन के टर्म में सॉलिबिलिटी रिप्रेजेंट करते हो तो उसके खुद के कोई यूनिट होते नहीं है, ठीक है। तो के एच के यूनिट प्रेशर वाले ही आते हैं इस इक्वेशन के केस में। तो यहाँ से पता लगा कि यू हैव टू अप्लाई दिस इक्वेशन इन विच प्रेशर इज इक्वल टू सॉलिबिल मोल फ्रैक्शन इनटू के एच, ओके। नाउ प्रेशर ऑफ गैस इज गिवन 1 बार, ओके। मोल फ्रैक्शन यू हैव टू फाइंड, क्योंकि सॉलिबिलिटी बोला ना निकालने को, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस ही फाइंड आउट करोगे, वो यही बताएगी कि कितनी गैस डिजॉल्व हो गई है उस पर्टिकुलर लिक्विड में, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इनटू दिस इज द के एच ऑफ द गैस, ओके। तो यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस कम्स आउट टू बी 1.4 इंटू 10⁻⁵, ओके। इट मीन्स लिक्विड में इतनी गैस घुल जाएगी, हाइड्रोजन गैस, ठीक है, जिसके घुलने की वजह से इस लिक्विड में मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा, 1.4 इंटू 10⁻⁵, ओके, इतनी गैस घुल जाएगी। बट अगर आपको मान लो सॉलिबिलिटी मोल फ्रैक्शन के टर्म में ना निकाल के मोलैरिटी के टर्म में निकालनी है, तो यहाँ से ये जो मोल फ्रैक्शन निकाल लिया आपने, वहाँ से आप मोलैरिटी निकाल सकते हो, ओके। और मोल फ्रैक्शन और मोलैरिटी के बीच में शॉर्टकट इक्वेशन ये है, ओके। ये इक्वेशन मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में समझाई हुई है, अगर भूल गए हो तो वो देख लो जाके, क्लियर। तो इसके केस में क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इज दिस एंड कैपिटल एम क्या डेजिग्नेट कर रहा है, मोलैरिटी, ओके। एक्स, ये जो काई जी है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मोल फ्रैक्शन, और m1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट, और m2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ओके। और d क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डेंसिटी, क्लियर। तो ये शॉर्टकट रिलेशन भी आप लगा सकते हो टू कैलकुलेट मोलैरिटी, अगर आपने सॉलिबिलिटी मोल फ्रैक्शन की टर्म में ना निकाल के मोलैरिटी की टर्म में निकालनी है। तो यहाँ से अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करो, बस ये कैपिटल एम की वैल्यू को छोड़ के बाकी सब तो हमें पता ही है, और डेंसिटी को 1 लो, क्योंकि डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ही होती है अप्रॉक्सीमेटली, और हाइड्रोजन इतनी तो घुल नहीं गई है कि उसकी डेंसिटी चेंज हो जाए, कर दे वाटर की, ठीक है। तो ऑन सॉल्विंग दिस द मोलैरिटी कम्स आउट टू बी
7.78 इंटू 10⁻⁴ मोलर। तो अगर आपने सॉल्युबिलिटी को मोलैरिटी के टर्म में एक्सप्रेस करना है तो वो सॉल्युबिलिटी ये रही गैस की, जो गैस हाइड्रोजन में डिज़ोल्व होके जो सोल्यूशन बनेगा उसकी मोलैरिटी ये रही। क्लियर। और अगर आपने उसकी जो कंसनट्रेशन है हाइड्रोजन गैस जो डिजॉल्व है उसकी कंसनट्रेशन को अगर आपने मोल फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करना है तो वो ये रहा फॉर्मूला आपका। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूमेरिकल। नाउ न्यूमेरिकल नंबर सेकंड। नाउ हियर द क्वेश्चन इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ इट एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 1.2 इंटू 10⁻⁶। मतलब आपने एक सोल्यूशन लिया और उस सोल्यूशन में हीलियम डिजॉल्व थी और हीलियम का मोल फ्रैक्शन कितना है उस सोल्यूशन में 1.2 इंटू 10⁻⁶। तो उस सॉल्यूशन से को जब आप किसी नए कंटेनर में ट्रांसफ़र करोगे तो घुली हुई हीलियम कुछ बाहर आनी शुरू हो जाएगी। ओके, क्लियर। तो उस बाहर आई हीलियम की वजह से कितना प्रेशर एक्सर्ट होगा अबव द लिक्विड, अबव द सॉल्यूशन, ये बताना है आपने। ठीक है। और के एच फॉर द हीलियम एट 20 डिग्री सेल्सियस इज गिवन। इस बार भी के एच के यूनिट्स जो हैं वो किलो बार में दिए हुए हैं, मतलब प्रेशर वाला यूनिट। तो कौन सी इक्वेशन लगनी है? नई इक्वेशन जिसमें प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू के एच इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। ये वाली इक्वेशन आपको हेनरीज लॉ वाली लगानी है। यहाँ से कहाँ से पता लगा? के एच के यूनिट्स देख के। ओके, तो प्रेशर ऑफ गैस दिस यू हैव टू फाइंड। के एच फॉर द गैस इज गिवन किलो बार। ओके, एंड व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस in the solution that is given this. तो pressure of gas on solving this comes out to be 0.174 bar। मीन्स जो लिक्विड के अबव ये गैसेस के मॉलिक्यूल आएंगे उनकी वजह से ये कितना प्रेशर एक्सर्ट करेंगे गैसेस के मॉलिक्यूल? 0.174 बार। ओके, दिस इज ऑल अबाउट दिस न्यूमेरिकल। नेक्स्ट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल एंड लॉजिकल ऑल्सो। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एयर कंटेन्स ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इन रेशो 1:4। ये मोलर रेशो दी है। मोलर रेशो का मतलब क्या होता है कि अगर 5 मॉलिक्यूल आप एनालाइज करोगे एयर के तो उसमें से 4 मॉलिक्यूल जो हैं वो नाइट्रोजन के निकलेंगे इस रेशो के अकॉर्डिंग, और 1 मॉलिक्यूल जो है वो ऑक्सीजन का निकलेगा इस मोलर रेशो के अकॉर्डिंग। ओके, नाउ दे आस्क कैलकुलेट द रेशो ऑफ सॉलिबिलिटी, मतलब सॉलिबिलिटी इन टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। मतलब अगर आप किसी लिक्विड को रख दो इस एयर की प्रेजेंस में, तो जो एयर है उस एयर में से इसमें ऑक्सीजन भी घुलेगी और नाइट्रोजन भी घुलेगी, बिकॉज एयर कंसिस्ट ऑफ ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन। ओके, तो कितनी ऑक्सीजन घुली है और कितनी नाइट्रोजन घुली है उनकी सॉलिबिलिटी निकाल लेनी है बाय यूजिंग हेनरी लॉ। ओके, और उन सॉलिबिलिटीज़ की जो रेशो है वो आपको फाइंड आउट करनी है। रेशो ऑफ solubilities of oxygen and nitrogen, this is you have to find. Okay, okay, which will dissolve in water at atmospheric pressure and room temperature. Okay, this is the statement. Okay, एक बार दोबारा पढ़ते हैं। एयर कंटेन्स ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इन रेशो 1:4 विच इज़ मोलर रेशो। कैलकुलेट द रेशो ऑफ सॉलिबिलिटीज इन टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन डिजॉल्व इन वाटर एट एटमोस्फेरिक प्रेशर। ओके, तो मतलब वो एयर का प्रेशर कितना है? एटमोस्फेरिक प्रेशर जितना कितना होता है एटमोस्फेरिक प्रेशर? 1 एटमोस्फेयर। ओके, और यू कैन से 760 टॉर एंड रूम टेम्परेचर, एंड टेम्परेचर गिवन इज रूम टेम्परेचर। ओके, नाउ KH for oxygen is given, Henry constant for oxygen this is given, and Henry constant of nitrogen is given, but in case of टॉर में दिया हुआ। ओके, तो एटमोस्फेरिक प्रेशर आप टॉर में लोगे, फिर 1 एटमोस्फेयर की बजाय आप क्या लोगे? 760 टॉर, because 1 atmosphere is equal to 760 torr. Okay, first of all, to solve this numerical you have to calculate partial pressure of oxygen and nitrogen. Okay, अब आप बोलोगे क्यों? Why you have to find out partial pressure of oxygen and nitrogen? एयर जो आपके पास है रूम में उसमें ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन दोनों है। एयर का प्रेशर 1 एटमोसफेयर है और या 760 टॉर है, ऐसे बोल लो। ओके, ये गिवन है, बट एयर में ऑक्सीजन का प्रेशर कितना है ये निकालना है, और एयर में नाइट्रोजन के कारण कितना प्रेशर है ये निकालना है आप लोगों ने। ओके, क्लियर। इट मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन। ओके, टोटल प्रेशर ऑफ एयर इज गिवन। ओके, और वो कैसे निकलता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन विल बी दी मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर इनटू
टोटल प्रेशर ऑफ द एयर। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया, +1 में है आपके पास डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर, उसमें है आपके पास डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो आपके पास प्रेशर ड्यू टू ऑक्सीजन इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन इनटू टोटल प्रेशर। ओके, और मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा, हमने हमारे पास मोलर रेशो क्या दी हुई है, 1:4। इट मीन्स अगर आपके पास 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन हो उसके कंपेरेटिवली 4 मोल ऑफ नाइट्रोजन होंगे एयर में। ओके, तो व्हाट विल बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन 1 मोल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स 1 + 4 मोल। ओके, सो दिस कम्स आउट टू 1/5 इंटू 760। 760 क्यों, क्योंकि आपके पास टोटल प्रेशर कितना लिया हुआ है, दिया हुआ मिक्सचर का, दैट इज 760 टॉर। तो दिस कम्स आउट टू बी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन कम्स आउट टू बी मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इनटू टोटल प्रेशर। सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन क्या आ जाएगा 4, क्योंकि नाइट्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स 4 होंगे फॉर एवरी 1 + 4, फॉर एवरी, क्योंकि 1:4 में है तो इसकी मोल फ्रैक्शन क्या आ जाएगा 4/1 + 4 इंटू 760। तो दिस इज द पार्शियल प्रेशर ड्यू टू नाइट्रोजन। इट मीन्स जो एटमोस्फेरिक प्रेशर है उसमें से, मतलब 1 एटमोस्फेयर जो प्रेशर है एयर का, उसमें, या ऐसे बोल लो 760 टॉर जो प्रेशर है, 760 टॉर में से इतना प्रेशर जो है वो ऑक्सीजन की वजह से होता है और बाकी जो बचता है प्रेशर वो नाइट्रोजन की वजह से होता है। ओके, क्लियर। सो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इज फाउंड हेयर। ओके, and next, wait, so here it is, so you have to find out, हमारे पास रिलेशन क्या होता है, प्रेशर ऑफ गैस, हेनरी लॉ लगाने वाले हैं, प्रेशर ऑफ गैस विल बी इक्वल टू के फॉर गैस इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस। दिस रिलेशन यू हैव टू अप्लाई, क्यों, क्योंकि जो के यूनिट दिए हुए हैं वो क्या दिए हुए हैं, टॉर, विच इज़ यूनिट ऑफ प्रेशर। तो वहाँ से पता लगा कि ये वाली इक्वेशन लगनी है। तो यहाँ इसको अगर मॉडिफाई किया जाए तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द लिक्विड, ये लिक्विड में कितनी गैस आ जाती है उसका वो लिखा था ना, वो मोल फ्रैक्शन होता है। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ गैस इनटू के ऑफ गैस। ओके, सो यही आपने ऑक्सीजन के लिए कर लेना है, यही आपने नाइट्रोजन के लिए कर लेना है। ऑक्सीजन कितनी घुलेगी उस पर्टिकुलर लिक्विड में, दैट इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाय हेनरी कांस्टेंट फॉर ऑक्सीजन। एंड सिमिलरली इस लिक्विड में नाइट्रोजन कितनी घुली होगी, दैट इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इनटू हेनरी कांस्टेंट गिवन फॉर नाइट्रोजन। और इन दोनों की रेशो निकालनी है ना आपने, यू हैव टू फाइंड आउट रेशोज। ओके, यू हैव टू फाइंड आउट रेशियो ऑफ सॉलिबिलिटीज। ओके, तो इट मीन्स आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्सो, मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 और मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 की रेशियो निकालनी है। इट मीन्स इसको आपने 1 को 2 से डिवाइड कर देना है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ऑन डिवाइडिंग 1 with 2, लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएंगी, मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू, और इसकी वैल्यू क्या थी ये, और इसकी वैल्यू क्या थी ये, आपने जब पुट करी। ओके, प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन अब आपको पता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन अब आपको पता है। ओके, के फॉर एन इज गिवन, के फॉर O2 इज ऑल्सो गिवन। ओके, एंड सॉल्विंग दिस comes out to be 1/2. It means mole fraction of oxygen divided by mole fraction of nitrogen comes out to be 1/2, और यही आपने निकालना था। ओके, दिस इज व्हाट यू हैव टू फाइंड। ओके, रेशियो ऑफ सॉलिबिलिटीज आ गई। ओके, ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, क्लियर। मतलब इसमें करना क्या था आपने, सबसे पहला काम था आपका, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट पार्शियल प्रेशर्स ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ओके, क्लियर, कि ऑक्सीजन के कारण कितना है और नाइट्रोजन के कारण कितना है, क्योंकि तभी आपके पास जो हेनरी लॉ है, हेनरी लॉ में क्या होता है, प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू के एच फॉर गैस इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस। तो यहाँ पे गैस का प्रेशर चाहिए होता है ना, कि जिस गैस की बात कर रहे हो, टोटल प्रेशर थोड़ी ना चाहिए मिक्सचर का। दिस इज द गैस प्रेशर ऑफ गैस। तो अगर आप ऑक्सीजन की सॉलिबिलिटी देखनी है तो आपको यहाँ पे ऑक्सीजन का प्रेशर चाहिए, कि ऑक्सीजन के कारण कितना प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है। ओके, विच इज़ कॉल्ड एज द पार्शियल प्रेशर। और पार्शियल प्रेशर हमने कैसे निकाले, बाय अप्लाइंग डाल्टन्स
law of partial pressure. Okay, this is how you will solve this. और जब solubilities आ जाएंगी हेनरी लॉ लगा के, और solubility की रेशो करना तो कोई मुश्किल बात है नहीं. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूमेरिकल. हमने आज 3 न्यूमेरिकल करे किसके, हेनरीज लॉ के. ओके, एंड दीज 3 न्यूमेरिकल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इनसे मिलता जुलता ही कोई ना कोई न्यूमेरिकल आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा. ओके, so this is all about Henry's law. Okay, and in our next topic we will discuss Rawls law. Okay, clear?